fight is not about politics. That is superficial. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Viewers, this comment by Rahul Gandhi on the condition of Sikhs in India are a stark reminder of the Congress party's blatant hypocrisy and shameless fear-mongering. His outlandish suggestion or claim that Sikhs are being denied the right to wear turbans or kadas are not only divisive and dangerous, but also a cruel joke, considering his party's dark history of perpetrating the 1984 Sikh genocide. Viewers, it's as if Rahul Gandhi is time traveling. Look at the two sets of pictures on your screen. Speaking from the same stage as his father Rajiv Gandhi did when he infamously justified the massacre with the comment, "Jab bada ped girta hai." The Congress party's continued patronage to leaders like Jagdish Titler, accused of orchestrating the violence, is a slap in the face of Sikh victims and their families. Has Rahul forgotten the horrors of 1984? The alleged involvement of top Congress leaders in the massacre? The countless lives lost, families torn apart, and the trauma inflicted on an entire community? Rahul's fear-mongering is an insult to the very people who suffered at the hands of his party. Viewers, it does not stop at this. Ironically, Rahul's fear-mongering flies in the face of his recent slogan, "Daro mat," don't be afraid. On one hand, he claims to be championing courage and fearlessness, and on the other, he's busy spreading fear and paranoia among the Sikhs. Viewers, Rahul's comments are not just a political ploy, but a heartless attempt to exploit the emotions of Sikhs for electoral gains. His party's track record on Sikh welfare is abysmal, and yet Rahul Gandhi has the audacity, viewers, to claim concern for their safety. The Sikh community deserves better than Rahul Gandhi's crocodile tears and fear-mongering. They deserve justice, they deserve accountability, and they deserve a genuine commitment to their welfare, not empty rhetoric from a party that has consistently betrayed their trust. During the pogrom against the Sikh community in 1984, many of my friends, because they were being attacked, they got clean shaven and shed their turban out of fear, not as a matter of choice. लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? देखो राहुल जी, पहली बात तो ये है, एक एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अहदे पे पहली बार गए थे, तो ये लग रहा था भी शायद वो अपनी पप्पू वाली छवि जो है उसे शायद बदलेंगे। इससे बड़ी हिपोक्रेसी हो नहीं सकती। जिनके परिवार ने सिख नरसंहार को, जहां पर 4000 से ज्यादा सिखों को मारा काटा गया, उसे जस्टिफाई किया, कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये राजीव गांधी के बयान थे। जो व्यक्ति आज राहुल गांधी की ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा सिख दंगा हुआ तो हुआ, नरसंहार हुआ तो हुआ। Let's open this up. Shehzad Poonawala, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Karan Verma, political analyst IP Singh ji, the national spokesperson of the Samajwadi Party, Kishore Tiwari, spokesperson of the Shiv Sena, Dr. Nikul Patel, Congress leader, Varun Purohit, political analyst, completes the panel. Gentlemen, good evening. Dr. Nikul Patel, is Rahul Gandhi time traveling? This, sounds like a speech from 1984, as if Rahul spoke after Rajiv Gandhi. What is the basis on which Rahul Gandhi has made these conclusions? See, if you listen the speech, BJP wants to try to set something wrong narrative into the country. He had not disgraced the country nor the Sikh community. What he is speaking in an entire speech is that we are the country having
the states having different languages, different culture, different religion, different customs, and all are being respected. Nobody can be disallowed to do anything what they want in the country. That is how our constitution supports the fundamental right of every citizen. I think Bharatiya Janata Party wants to set the narrative in the country that Dr. Nikul Patel, I don't think you've either understood what Rahul Gandhi said or perhaps you misunderstood the question I asked. Here is what Rahul Gandhi has said. Let me read it out verbatim to you. Listen to me. Dr. Patel, just listen to me. 1 minute, sir. Calm down. ये बोला है राहुल गांधी ने. The fight in India is about whether a Sikh is going to be allowed to wear a turban, whether a Sikh will be allowed to wear a kada, or will he be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and it is not just for the Sikh, it is for all the religion. Who is stopping the Sikhs from doing these things? आप बता दीजिए. किसी ने रोका है? See, he was uttering about the political environment what country is facing right now. Do Bharatiya Janata Party is not spreading the words of Hindutva in the country, opposing the basic, fundamental, secular state of the constitution? Do Prime Minister is not speaking different religion about in his own speeches? I don't understand. Nikul Patel, Rahul Gandhi you know, sir, let's simplify this for the viewer. You tell me, 1 minute, sir. On what basis is Rahul Gandhi making the claim? Dr. Patel, you're a reasonable man, sir. कहां से आया ये? How are you drawing this conclusion that the Sikhs are under attack, that they are scared? कहां से आ रहा है ये? Your misinterpretation is this. What is the real interpretation? That is what I am stating of Rahul Gandhi. I am a respectable man. I acknowledge your words, and that is what I am representing. My party is also respectable, and they are respecting everyone in the entire country. We are not like Bharatiya Janata Party who wants to do just the politics and to get into the power by doing such misinterpretation of words of Rahul Gandhi. वरुण पुरोहित जी, आपको ऐसा नहीं लगा राहुल गांधी 1984 में भाषण दे रहे थे सिख दंगों के बाद? प्रणय जी, इसमें दो बातें. एक बात तो अगर हम कंसिडर करें कि नरेंद्र मोदी जी भी जाकर के कोरिया में सब जगह बोले 2014 से पहले जो भारत में पैदा हुआ उसको शर्म आती थी, या जो भी उनके वोकेबुलरी थी, उनके वर्ड्स थे. ऐसे ही एलओपी हैं राहुल गांधी. तो जो भी बाहर जाते हैं बड़े नेता, चाहे सदन का नेता हो, प्रधानमंत्री हो या एलओपी हो, ऑपोजिशन लीडर हो गए, बाहर जाते हैं जब आप ये इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, सब लोग इंटरप्रिटेशन तो आपका करेंगे ही करेंगे. आप जब लीडर ऑफ अपोजिशन हो या प्राइम मिनिस्टर हो, आपके जो वर्ड्स हैं इतने नपे तुले होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए. छोड़ दीजिए, वो बोल रहे हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी फाइट ये है कि एक सिख आदमी अपना टर्बन पहन सकते हैं कि नहीं, गुरुद्वारा जा सकते हैं कि नहीं. ये कहां से आ रहा है? किसने बोला ऐसा? क्या सरकार ने बोला या किसी रिपोर्ट में है? मेरी बात तो सुनो. आप जो इंटरेक्शन वो कर रहे थे उसमें जो वर्ड्स का उनको जो प्रयोग करना चाहिए था बड़े बैलेंस्ड होने चाहिए. मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जब इतने बड़े नेता होते हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, ये बाहर जाके जब आप इंटरेक्शन करते हो या लेक्चर्स देते हो, तो आपको लगता है कि बैलेंस नहीं था? इतने बैलेंस्ड होने चाहिए जी. कोई तो चलिए एटलीस्ट आप इतना तो मानते हैं कि बैलेंस नहीं हुआ. बात करने से क्वेश्चन ही क्या था? ठीक है, दैट इज अ गुड स्टार्ट वरुण पुरोहित. एटलीस्ट आपने माना. तो अब मुझे मेरा दूसरा सवाल वरुण जी ये है, सैम पिट्रोदा ने क्या कहा दंगों के बारे में? हुआ तो हुआ. राजीव गांधी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है, उस पे राहुल गांधी नहीं बोले. देखो ऐसा है, सैम पिट्रोडा की आप बात कर रहे हो, सैम पिट्रोडा का कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए C.dot का, डिजिटल एक्सचेंजेस का, टेक्नोलॉजी. इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो इंडियंस, मैं बताता हूं उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि वो इंडियन को फॉरेनर बना देते हैं, इंडियंस को चाइनीज बोलते हैं, वो ये कंट्रीब्यूशन उनका. अब मेरी बात तो सुन लो. दोनों पक्ष करने चाहिए, हर आदमी के दोनों बात करनी चाहिए अगर वो उनका कंट्रीब्यूशन है. लेकिन वो पॉलिटिकल, अगर मैंने कहा ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसके लिए इज नॉट फिट. कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट पॉलिटिकल आदमी दे. अरे डॉक्टर पटेल, डॉक्टर पटेल आपने क्यों भेज दिया सैम पिट्रोदा को या राहुल गांधी को उनके साथ क्यों लगा दिया? देखिए वरुण जी क्या बोल रहे हैं. अब वरुण जी तो संघी नहीं है ना, नहीं तो आप बोल देंगे कि ये भी आरएसएस के हैं. पॉलिटिकल आदमी
See, वरुण जी अपने हिसाब से बोल रहे हैं. He want to portray that a political person make a political speech and has to be considered, right? That is what he wants to convey. Now, if we talk of Sam Pitroda ji, he's describing his own contribution to the country. What is right? Sam That is what he Pitroda's wants to contribution? That Indians are Chinese Africans. And what is Congress's contribution in elevating Sam Pitroda? That you ask Sam Pitroda to lead Rahul Gandhi wherever he goes in America. This is the contribution that we're talking about. To the country, the Congress contribution to the country is in remarkable contribution is there. Yeah. It is not that only after 2014. I am talking about Sam Pitroda's contribution. After 2014 only the country has progressed. That is not the Kishore Tiwari. What is the correct statement? Nobody said that. Kishore Tiwari, sir, 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ था, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा था, क्या किया था, और राजीव गांधी ने क्या कहा था, सब भूल गए राहुल गांधी. एक बात मैं बताता हूं. देखो प्रणेश, सिखों का आजादी के अंदर और मुगलों के वक्त जो कुछ उनका बलिदान है वो मैं नहीं भूल सकता. और जो कुछ नहीं है बहुत बड़ा बलिदान है और मैं भूल नहीं सकता. बोला मैं बिल्कुल. अंडमान में मैं जब पोर्ट ब्लेयर गया था तो मैंने जो लिस्ट पढ़ी थी, जिनको शहादत मिली थी वो सारे के सारे मुझे सिख दिखे थे. और मैं बता रहा हूं ज्यादा कैदी वहां पंजाब से थे. और अरे किशोर तिवारी जी, मुझे तो ये पता, मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे तो ये पता है. एक मिनट प्रणेश, मैं तुमको समझा देता हूं कि भारत के अंदर आज कोई भी प्रार्थना पद्धति में अपनी प्रेयर करने पे कोई लगाव नहीं, कोई गवर्नमेंट का पाबंदी नहीं है जी. और भारत की संस्कृति ऐसी है कि प्रार्थना पद्धति हर संप्रदाय की यहाँ रिस्पेक्ट की जाती है जी. लेकिन मोदी जी ने चुनाव के दरमियान जो बयानबाजी की, हाँ. और जो माहौल अभी शहजाद पूनावाला तरीके लोग आके टीवी पे फैलाते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होके नहीं शहजाद पूनावाला, नहीं एक मिनट, शहजाद पूनावाला टाइप मतलब क्या वो मुसलमान है इसीलिए आप बोल रहे, क्या बोलना चाहते हैं? शहजाद पूनावाला टाइप मतलब टाइप बोले तो जहरीली बातें करने वाले. अच्छा, जहरीली बातें. शहजाद, ओके. अब आप मंगलसूत्र, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप. शहजाद पूनावाला, आप जहरीली बातें करते हैं. और बहस टोटी वाला है. आदरणीय किशोर जी, अब मुझे मौका दें, मैंने एक भी बात बीच में नहीं बोला. नहीं मौका बिल्कुल, उन्होंने सवाल पूछा है. आप जहरीली बात करते हैं और देश का माहौल खराब कर दिया आपकी पार्टी ने. किशोर जी, अब पूरा अवसर दीजिएगा. मैंने आपकी बात को एक भी बार नहीं टोका या रोका, तो आप मुझे जहरीला बात करने का आरोप लगाते हैं. तो देखिए, मुझे लगता है कि किशोर जी को पर यह जहरीला लगता है सनातन समाप्त, सनातन बीमारी. हिंदुत्व जो है वो आईसिस और बोको हराम की तरह होता है. राम मंदिर जो है गुलामी की निशानी है. रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है. ये जहरीला है, नहीं है. अच्छा, दूसरी बात है कि बीच में नहीं, प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला. प्रणेश जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं. वन पर्सन स्पीक्स, ऑल फेडर्स डाउन. यस. अभी जो हिमाचल प्रदेश में शिमला में अनिरुद्ध सिंह नाम के मंत्री ने कहा कि लव जिहाद हो रहा है, मस्जिद अवैध है, वो जहरीला है या नहीं है? और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये मोहब्बत की दुकान खोल के नफरत के भाईजान कौन है जो अब पहले मुसलमान भड़काना, अब सिखों को भड़का के दंगे लगाना कर रहे हैं? मुझे 5 उदाहरण दीजिए जहां पर 10 साल में किसी का कड़ा या किसी के टर्बन को उतारने की कोशिश की गई हो या किसी को गुरुद्वारे में घुसने नहीं दिया गया हो. पर मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहता हूं. जसलीन कौर, मेरे पति के टर्बन को खींचकर उनको बाहर घर से ले गए और मार दिया. हरसिमरन कौर, उन्होंने मेरे पिता के सिख टर्बन को निकाल के मुझे उनको मार दिया. अमरजीत, आई वॉज मेड टू रिमूव माई टर्बन, माई हेयर वॉज ओपन एंड इट वॉज कट. पता है ये कब हुआ? 1984 के नरसंहार के समय पर, जब राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है. जब ये कहा गया कि किस प्रकार से हुआ तो हुआ. जब 34 वर्षों तक सज्जन कुमार को डिफेंड किया गया और जगदीश टाइटलर पर चार्जेस फ्रेम हुए. आज भी जगदीश टाइटलर कांग्रेस में निकाला नहीं है इस परिवार ने. परंतु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं. 2 बातें देखिए. आज तो सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बोलते ना, भगवान भी कभी कभी कैसे कर देता है. सुशील कुमार शिंदे का बयान है कि मैं जब जम्मू कश्मीर जाता था तब मैं डर जाता था, और आज भाई बहन जब जाते हैं तो बर्फ के गोले से खेलते हैं, हाथ गोले से नहीं. मतलब सामाजिक सौहार्द में कितना शिफ्ट आया वो खुद बता रहे. परंतु आज आखिरी बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं.
देखिए आईपी सिंह जी बैठे हैं, पीडीए की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। राहुल गांधी क्या बोल गए? बोल गए कि 90% लोगों को अभी तक कोई रिसोर्सेज का बेनिफिट नहीं हुआ। अब उन्होंने ये भी कहा था ना कि सरकार हमारी बीजेपी की जरूर है, परंतु सिस्टम हमारा, मतलब कि वो मान रहे हैं कि उनके सिस्टम के द्वारा 90% लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिले, फिर भी वो कहते हैं आरक्षण समाप्त होना चाहिए। अब मैं आईपी सिंह जी से साफ साफ पूछना चाहता हूं, क्या आप आरक्षण समाप्ति के चक्कर में हैं? क्योंकि आपने किया भी है, जामिया एएमयू में आरक्षण समाप्त किया और मुसलमानों को दे दिया। कर्नाटका, बंगाल में ओबीसी का आरक्षण समाप्त करते हुए आपने मुसलमानों को दे दिया। आपने रंगनाथ मिश्रा में प्रपोज किया कि उनका समाप्त कीजिए और मुसलमानों को दे दिए। और आखिरी बात, जो जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करके एनसीए प्रपोज कर रही है कि एससी एसटी का आरक्षण समाप्त करो और मुसलमानों को फिर से वहां पर दे दो। तो इसीलिए यह सवाल बहुत प्रासंगिक है कि क्या आरक्षण समाप्त करने की प्लान जो 1961 में नेहरू जी की थी, जो 1980 to 90 इंदिरा जी की थी, क्या वही प्लान आज राहुल गांधी अपना रहे हैं, हाँ या ना? आईपी सिंह जी, सवाल आपसे है। आपसे सवाल है तो मैंने सोचा आप जवाब देंगे। हाँ प्रणय जी, बिना आपकी अनुमति के कैसे बोल? नहीं, पूरी अनुमति है सर। आप करते हैं अपनी आप समाजवादी पार्टी अनुमति मांगने लग गए। आप सीनियर लीडर है सर, आपको अनुमति नहीं है। आप बोलिए, आप ऑप्शनल भी अगर नहीं देना चाहते हैं तो वो भी आपको अलाउड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो देखिए, जो नहीं, योगी जी का असर अच्छा है कि अनुमति मांगने। सम्मान आपका पहले, उसके बाद हम पैनल में बैठे सबका सम्मान करके अपनी बात कहेंगे। जी। सवाल यह है कि आज श्री राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पीछे भारत के 246 सांसदों की ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी का दिल बहुत छोटा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इसी कांग्रेस की सरकार थी और संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में बतौर अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस ने भेजने का काम किया और देश का माथा ऊंचा किया। कांग्रेस विपक्ष को साथ जोड़कर चलती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण जी को बड़े बड़े फोरम पर भेजने का काम किया। आज बीजेपी और हमारी जो ये सरकार है वो मणिपुर पर मौन साधे हुए हमारी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। देश का एक हिस्सा संकट पर है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम गुजरात दंगे पर चर्चा नहीं करेंगे। हमने मणिपुर पे हजारों लोग मैं बता रहा हूं, और आप जैसे जवाब देते हैं प्रधानमंत्री का, आईपी सिंह जी, आप जैसे जवाब देते हैं मैं वैसे बोलना चाहता हूं। सवाल यह है कि आप जगदीश टाइटलर पे नहीं बोल रहे हैं, सवाल यह है कि आप राहुल गांधी पे नहीं बोल रहे हैं, सवाल यह है कि आप राहुल गांधी ने जो सिखों के बारे में बोला आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। सवाल यह है कि जो मेन सवाल है आप उसका जवाब नहीं दे रहे। यही होता है। देखिए, हमेशा जब आपके पास जवाब नहीं होता आईपी सिंह जी, मैंने आपको देखिए पूरा मौका दिया, सुनता रहा कि अब आप आएंगे टॉपिक। देखिए, ये कोई अभी शहजाद पूना वाले ने छेड़ा था 84। नहीं, सुनिए, मैं आपसे गुजरात का दंगा हुआ, मैं उसका जिक्र क्यों नहीं करूंगा? नहीं, आप करिए। अभी जो डिबेट है आईपी सिंह जी, देखिए ये कोई अधिवेशन तो चल नहीं रहा है कि इसमें अनलिमिटेड टाइम है सर। लोग जो देख रहे हैं घर से बैठ के, आईपी सिंह जी, आई एम नॉट अलाउइंग दिस। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुनाइट, then I can understand your compulsions, but I am not going to allow this. It is a wastage of time. The viewers don't deserve this. Don't do this, sir. Please. केवल एक वाक्य बड़ा करण वर्मा, you see direct questions. Okay. एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, क्योंकि आदरणीय किशोर तिवारी जी भी बैठे हैं सामने। 1984 में जब पहली कन्विक्शन आई 2018 में, तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिला, ये कहा गया। आदरणीय किशोर जी के नेता, सबसे सर्वोच्च नेता बाला साहेब ठाकरे जी ने बताया कि 2002 में जो हुआ वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, जब गोधरा में जो कांड हुआ। आज आदरणीय किशोर तिवारी जी, क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? ये सिखों के नरसंहार को कम करके बताने की बात है आईपी सिंह जी जो कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि किशोर तिवारी जी क्या गोधरा के कांड को भूल जाएंगे और अब वो कहेंगे नहीं 2002 में भी पॉलिटिकल पेट्रोनेज था जिस प्रकार से 1984 में था। दूसरी और आखिरी बात, वीरेंद्र बहादुर की पार्टी, कन्नौज की पार्टी और ये नवाब यादव की पार्टी और मोहित खान की पार्टी बेटियों की बात करे तो ये तो मतलब कि 100 चूहे खाकर पता है ना कहां चले गए। किशोर जी, डू यू वांट टू रेस्पॉन्ड? आई वांट टू रिस्पॉन्ड। यस सर। देश में 2024 में इतिहास को लेके और दंगों को लेके ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन 84 हो या गोधरा के बाद के हो, ये सब दुखदाई है और ये चीजें अब टलनी चाहिए। मैं पंतप्रधान को 5 साल के लिए चुन के दिया गया है,
वो अभी ऐसी बातें ना करे, चुनाव में हुआ जो हुआ। नहीं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, नहीं हुआ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ये आप एट्रीब्यूशन गलत कर रहे हैं। ये पंत प्रधान ने नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा किशोर तिवारी जी, ये तो सैम पिट्रोदा ने कहा है। और आप जो कह रहे हैं कि नहीं सुन लीजिए किशोर जी, एक मिनट किशोर जी, बस एक 30 सेकेंड। मैं ये बोल रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि 5 साल के लिए हमने चुन के दिया, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इलेक्शंस वर नॉट फेयर इन इंडिया। वो तो इलेक्शन प्रोसेस पे ही सवाल उठा रहे हैं। तो आप बोलते रहिए जो आपको मानना है, राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं। मेरी बात सुनो, देखो राहुल गांधी और शिवसेना, इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर है, तो वो आरएसएस के बारे में जो कुछ बोला वो सब गलत है। मैं अभी बता रहा हूं ना, अब मोदी शाह ये कोई आरएसएस थोड़ी है, ये गलत रूप से भाजपा चला रहे हैं, ये तानाशाह है, देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया है, ये सब बातों से मैं सहमत हूं। लेकिन आरएसएस या देश में नफरत फैला रहा है, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये जो आप बोल रहे हैं इससे देखिए अभी वरुण जी आप सहमत है किशोर तिवारी से कि आरएसएस तानाशाह नहीं है? यस। राहुल गांधी बोलते हैं कि तानाशाही है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। निकुल पटेल, ये देखिए आपके अलायंस पार्टनर है, वही बोल रहे हैं कि आरएसएस को बुरा मत बोलो। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय मैंने बताई। ठीक है, व्यक्तिगत राय। अच्छा, उद्धव जी मानते हैं कि नफरती है? उद्धव जी नफरती मानते हैं आरएसएस को? उद्धव जी का भी है। देखो वो संप्रदाय में दंगे लगाते नहीं है। उद्धव जी की राय, उद्धव जी की भी राय है ना आपकी राय? किशोर जी अगर उद्धव जी की भी राय है तो फिर व्यक्तिगत क्या हुई? पार्टी उद्धव जी की है। मेरे को आरएसएस ने संप्रदाय विरोध कभी सिखाया नहीं, तो मैं क्यों झूठा बोलूं? मैं तो आपको सच्चाई आईपी सिंह जी सबने बोल लिया। करण वर्मा सुन रहे हैं अभी तक। करण, let's first talk about what Kishore Tiwari has said. Look, the alliance partners of Congress party, in effect Rahul Gandhi, even they don't agree with the kind of things he says. Pranesh, I know Kishore ji very well. He's a very decent man. I have a lot of respect. And there are so many things he has to stomach every day. Like, for example, the Waqf. Shiv Sena, Bala Sahib Thackeray said, we cannot allow the Waqf. It will become a Sharia. And Uddhav Thackeray said, Waqf ko chhu nahi sakta. Veer Savarkar. I mean, you should look at Kishore ji's expressions whenever Veer Savarkar is mentioned. Rahul Gandhi has not missed a single opportunity to abuse Veer Savarkar ji, who was absolutely revered by Bala Sahib, and Bharat Ratna was demanded by Bala Sahib. So we can understand with, empathize with Kishore ji. But I want to come to the topic here. Pranesh, now when Rahul Gandhi says कि सिखों को क्या उनकी पगड़ी पहनने को मिलेगी इस देश में, that is the question. पहली बात तो राहुल गांधी जी, आप बाबर की टूम पे गए, आपकी पिछली 3 पीढ़ियां गई, बाबर की पूरी जमात खत्म हो गई, उनके जो सक्सेसर्स हैं आज की डेट में बाराबंकी में भीख मांग रहे हैं, सिखों को कोई रोक नहीं सकता टर्बन पहनने से। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यू मस्ट नो दिस एंड द व्यूअर शुड नो, पंजाब इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री व्हिच हैज अ डिफाइंड ब्लास्फेमी लॉ, द ओनली स्टेट which has a defined blasphemy law. And what has the Narendra Modi government done for the Sikhs? I want to tell this today. 300 cases of the 1984, which happened under the Congress government, which was perpetuated by Congress's people, no justice ever happened. 300 cases were reopened. 3,000 victims were given 5 lakh compensation to each one of them by the Narendra Modi government. Kartarpur corridor constructed. CAA. You must understand, the Sikhs which were persecuted in Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, they were for the first time given citizenship, something that was demanded by Manmohan Singh on the floor of the House but was never given. Article 370 was removed. For the first time, the Sikhs who had come from West Pakistan, they were given domicile status, they were given equal rights. So this government has done a lot for the Sikhs, and it has done it with a lot of seva bhav. Pranesh, I still remember the 3 Guru Granth Sahibs ji which were brought in from Afghanistan, especially when the Taliban had taken over Afghanistan. 26 December was declared as the Veer Bal Divas in the honor of the Veer Sahibzades. So, when Rahul Gandhi talks this, it is very clear this man has a divisive agenda. I am done with calling him Bal Buddhi, or as Sam Pitroda was saying, he is not Pappu anymore. I think there is an evil, sinister plan that he has.
And he wants to pit one community against another, whether it is North versus South, whether it is along caste divisions, whether it is Sikh versus non-Sikh. And this is where we have to have our guard on. We cannot just dismiss it as Bal Buddhi, because there is something very seriously evil brewing, and that must be called out for it what it is. ओके वरुण जी, मैं नानावटी कमीशन ने क्या कहा था मैं एक बार पढ़ देता हूं और फिर मैं चाहता हूं कि आप आईपी सिंह जी और डॉक्टर पटेल उस पे अपनी राय दें। यह कहा गया था, अब मैं वर्बैटिम पढ़ रहा हूं सर। देयर इज ऑल्सो एविडेंस टू शो दैट इन अ सिस्टमैटिक मैनर द सिख्स हु वर फाउंड टू हैव कलेक्टेड आइदर एट गुरुद्वारा or at some place in their localities for collectively defending themselves were either persuaded or forced to go inside their houses. There is enough material on record to show that at many places the police had taken away their arms or other articles with which they could have defended themselves against the attacks by mobs. राहुल गांधी कड़ा और टर्बन की बात कर रहे हैं, ये तो किरपान तक ले लिया गया था। इसके बारे में राहुल गांधी ने नहीं बोला कि रियल फाइट तो ये थी। मैंने परमेश जी, मैंने 1984 को देखा है, मैं छोटा था, मैंने देखा कैसे ये सारा कांड हुआ। उसके पहले ये भी खबरें आती थी कि बसों से उतार के हिंदुओं को मार दिया जाता था और सिख जो भिंडरावाले या जो भी आतंकवादी थे वो हिंदुओं को उतार देते थे पंजाब में बसें। फिर केपीएस गिल आए, फिर बाबा संता सिंह उसके बाद आए, कई पूरा एपिसोड ही बड़ा देश के लिए दुखदायी था। लेकिन जो बात अभी चल रही है, वो बात चल रही है कि आप जिस पोजीशन पे हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो या एलओपी हो, तो आपको रेफरेंसेस, आपके इंस्टेंसेस, आपके एग्जाम्पल्स जो हैं बड़े सोच समझ के, बड़े बैलेंस व्यू में देने चाहिए। टॉपिक ये है कि आपने उनकी मन की भावना तो ठीक थी, राहुल गांधी की मन की भावना खराब नहीं, जैसे करण ने भी कहा ईविल है ये सब चीजें। देखो, भावना उनकी अच्छी है, बुरी नहीं है किसी की, ना मोदी जी की बुरी है ना राहुल गांधी की बुरी है। लेकिन जो शब्दों का प्रयोग आप करते हो, जो आप अपने एक्सप्रेस करते हो, आपका एक्सप्रेशन जो है, आपके व्यूज हैं, वो इतने बैलेंस जाने चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको रिप्रेजेंट करते हो। अब आपके शब्दों को, जैसे मैंने मोदी जी के शब्दों का भी एग्जांपल दिया कोरिया के भाषण का, राहुल जी को भी उसके अपने जो शब्दों को इतना बैलेंस रखना चाहिए कि बार बार कांग्रेस को एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़े। मैं तो मान रहा हूं बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन आप देखिए निकुल पटेल, राहुल गांधी ने जो ये, मेरा पहला सवाल क्या था निकुल पटेल से कि किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं, ये जो डराने का काम कर रहे हैं एक समुदाय को, फियर मॉन्गरिंग इज डेंजरस सर। वो कहते हैं डरो मत, और फिर ये कह रहे हैं, किशोर तिवारी ने भी बोल दिया, उन्होंने कहा कोई पाबंदी नहीं है इस देश में। और आईपी सिंह जी पे अगर मैं जाऊंगा तो वो बोलेंगे सवाल ये है, सवाल ये है, सवाल ये है। जो सवाल है उसका वो जवाब नहीं दे रहे। निकुल पटेल, आप फिर से मैं पूछता हूं, राहुल गांधी को ये किसने कहा या कांग्रेस पार्टी को किसने कहा कि सिख्स को डराया गया है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको आजादी नहीं है ये सब करने की? See, again, I would like to say the same thing what I said previously, right? He was discussing about the entire country, all the states with different philosophy, religion. Yeah, where is it happening in the entire country? I want you to tell us. Second thing, the facts figured out. I want you to, Nikul Patel, I want entire country, it's okay, I understand. 1 minute. I would like to say, no. I want you to give me examples. I want you to give me examples. Substantiate what Rahul Gandhi said or apologize. Try to listen the point what we also want to convey. And your viewers are rightly listening right now, everyone. I would like to convey one thing more. That is what Karanji told about. If everything happened during the Modi regime, then recently Mr. Kanwaljit Singh Arjana of BJP candidate from PUA, why he denied to contest the election? Because he's saying that the Sikh community is not supporting him. This is what BJP is doing for Bharatiya Janata for the people of Sikh. Secondly, why farmers are protesting in Haryana and Punjab? Are they with the Modi government? This is what the fear. People are not allowed to protest, and that is what the entire country is facing right now. And did Rahul Gandhi say this? Did Rahul Gandhi say this, Nikul Patel? Why are you not answering my question? Where are people not allowed to protest? You tell me. Where are people not allowed to protest? Right now. Where are people not allowed to protest? You tell me. For someone who says people of no. 1 minute. 1 minute, sir. Rahul Gandhi has been pitting Indians against Indians. Bola outsider.
Nikul Patel, you're not answering my question because there is no answer to it. Tell me three examples, I'm ready to answer, or I'm ready to answer. give me one cogent example on the basis of which Rahul Gandhi reached this conclusion. आप बता दीजिए. Farmers were not allowed to. Farmers, Rahul Gandhi is talking about Sikhs. We don't want to understand that it's. I want, no, you stand exposed, Nikul Patel. I am asking you a clear question. You don't have an answer. Farmers, protesters. The Congress's record on farmers is dismal. That's a separate debate. We've had and we can have, just that for want of time, I'm not going there. Tell me, can Sikhs in this country practice their religion freely? Yes or no? Everyone can practice their religion freely. That is what Rahul Gandhi wants to convey. Wants to, but he didn't say that. He said the fight is this, that whether or not you can go to Gurdwara. Putting the wrong perception to the people of the country. किशोर तिवारी जी, क्या आप कंडेम, अभी तक जो आपने बात बोली है, आपने बिल्कुल सही कहा है. क्या आप राहुल गांधी के इस भाषण को कंडेम करेंगे कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? I don't understand. It's a wrong perception that is being given by. जरा रुको जरा डॉक्टर साहब, जरा मेरे को एक बताना है कि कोर इशू को देश के एड्रेस किया नहीं जा रहा है और प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे लोग लादे जा रहे हैं तो प्रजातंत्र खतरे में है. लेकिन जो चीज है नहीं उस पर बोलकर काय को विवादों में फंसना चाहिए. मैं अभी बोल रहा हूं कि भारत के अंदर लोगों को, हर संप्रदाय के लोगों को प्रार्थना पद्धति पे कोई रुकावट नहीं है. आईपी सिंह जी, ये बात तो सत्य है. अब आप ये बताइए आईपी सिंह जी कि किशोर तिवारी सही बोल रहे हैं या राहुल गांधी? 56 इंच की छाती दिखाएं और इस्तीफा देकर किसी सरदार को डॉक्टर मनमोहन सिंह की भांति बीजेपी उन्हें प्रधानमंत्री बनाए. अगर इतना आपको लगाव है. जी, मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया था. जी, जिनके आगे सोनिया गांधी चलती थी. प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें. Let's put that to the BJP. किसी सरदार को प्रधानमंत्री Here's that direct question from Samajwadi Party is daring the BJP to do this. मैं उनको और भी बेहतर उपाय देता हूं. आप तो ओबीसी की बात करते हैं ना, एलओपी राहुल गांधी को हटा के ओबीसी को बनाइए. आप तो पीडीए की शुद्ध राजनीति करते हैं. तो बताइए कि सबसे पहले वो कहते हैं ना प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच. तो अब मैं आईपी सिंह जी 2 सवाल पूछ रहा हूं, बीच में मत बोले, 2 सवाल सुन लीजिए. आईपी सिंह जी, आप ही से सवाल है, आप ही को जवाब देना है. आईपी सिंह जी, पहले एलओपी जो ओबीसी नहीं है आपको बनाना चाहिए, वो कहते हैं आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा. उस पर आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? दूसरा, उनके साथी जो आपके भी साथी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कहती है 370 लागू करेंगे जम्मू कश्मीर में, फिर से हो सकता है चीन की मदद से. इसका मतलब 2 संविधान, मतलब बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होगा. अब दोनों विषयों पर बताइए कि क्या आरक्षण समाप्त करने की आपकी प्लानिंग है और क्या आप एलओपी ओबीसी को बना देंगे? बता दीजिए. हमारा तो पीएम ओबीसी है. 4 जून के बाद परिस्थितियां बदल दी. आप तो संविधान बदलने वाले थे, आप आरक्षण भी खत्म कर देते. आप सहमत नहीं है जातिगत जनगणना हो? अब ऐसा है आईपी सिंह जी, देखिए आईपी सिंह जी, इजाजत लेकर तो आप बोलते हैं पर विषय पर कभी नहीं बोलते. आप इजाजत लेकर बोलते हैं, ये सपा के गुण नहीं है, पर आप विषय पर नहीं बोलते, ये केवल सपा के गुण है. और सुन लीजिए आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, मैंने आपको सवाल का जवाब ही दिया. आप ओबीसी पीएम नहीं चाहते, पीडीए ओबीसी पीएम नहीं चाहती. अखिलेश यादव के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को उखाड़ कर फेंक दो. ये देखिए, ये ओबीसी समाज देख ले. अब आईपी सिंह बोलेंगे ये मेरा व्यक्तिगत इन्होंने अभी मांग की है कि ओबीसी समाज को उखाड़ के फेंक दो. ये बोलेंगे व्यक्तिगत मांग है. किशोर जी, आप क्यों हंस रहे हैं? पटेल जी से पूछिए. नहीं, ये ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री को हटा कर आप क्यों हंस रहे हैं? आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने किसानों का जो एग्जाम्पल दिया, मैं बोलना चाहता था लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि बार बार हम उसको बोल चुके हैं कि किसानों को उठा दिया. उन्होंने रोड्स ब्लॉक कर दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यू कांट हाईजैक द कंट्री लाइक दिस, यू कांट. और देखिए किसानों पे क्या डंडे बरसाए जा रहे पंजाब में. और जो प्रोटेस्ट की बात करते हैं, जितने भी कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर में प्रोटेस्ट को रोका जाता है. प्रोटेस्ट का तरीका है. प्रोटेस्ट का मतलब यह नहीं है जो प्रणीति शिंदे ने बोला था कि जला डालो, वो नहीं होता प्रोटेस्ट का मतलब जला डालो. आईपी सिंह जी वही ब्रांड ऑफ प्रोटेस्ट चाहते हैं
कि जला डालो। अरे नहीं, एक मिनट किशोर जी, 1 मिनट। वरुण जी, ये इतना मुश्किल क्यों है? निकुल, आपने मान लिया बात, किशोर तिवारी मान रहे हैं, लेकिन निकुल पटेल बोल रहे हैं कि पूरे देश की बात करते, पूरे देश में उनको एक एग्जाम्पल नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि सिखों को आजादी नहीं है कि वो जाके अपना प्रेयर कर सके। ये क्यों झूठ बोलते हैं ये? और अगर बोलते हैं तो क्या रीजन है? पहले कहते हैं डरो मत, और फिर उसके बाद ऐसे कमेंट्स आते हैं। प्रणेश जी, मैंने वही बात करी है, आप जब सेम के बारे में पूछ रहे थे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा बहुत शानदार एक देश के अंदर किया, उससे माहौल बदला और मोदी जी को झटका लगा, इसीलिए 240 सीटें हैं। लेकिन जो राजनीतिक चातुर्य होता है, मैं राजनीतिक चातुर्य की बात कर रहा हूं, उसके लिए आपको अपना जो सर्किल है वैसा बना के रखना पड़ता है कि जो सब राजनीतिक गहराई और सूझबूझ वाले हो। आप जो राहुल गांधी के जो की बात कर रहे हैं, उससे मुझे एक और चीज याद आ रही है वरुण जी, और मैं चाहता हूं निकुल पटेल और आईपी सिंह जी दोनों इस तस्वीर को देखें। हम एक तस्वीर चलाएंगे, उसमें आपको जगदीश टाइटलर दिखेंगे कांग्रेस के मीटिंग में, और ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं थी, ये थी भारत जोड़ो वाली मीटिंग। भारत जोड़ो यात्रा के एक मीटिंग में जगदीश टाइटलर थे। अब निकुल पटेल बोलेंगे कि देखिए देश में आजादी है सबको कहीं भी जाने की। निकुल पटेल, जगदीश टाइटलर को आप भारत जोड़ो यात्रा की मीटिंग में बुला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान। See, if you want to see Bharat Jodo Yatra and Bharat Jodo Nyay Yatra, it was open for everyone, and what Rahul Gandhi wants to send message. It was open for everyone. Call Zakir Naik also. The country as an integral part, right? We are not divisible. Yeah, just like Congress party is open for everyone. Thinking that Nyay for everyone. We have started Nyay Yatra. Nyay for everyone. The people of Manipur were facing trouble of Nyay. नहीं, जगदीश टाइटलर, एक मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जगदीश टाइटलर, एक मिनट डॉक्टर निकुल पटेल, यू आर रिस्पेक्टिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यू आर रेस्पेक्टिंग, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख्स। ओके, शहजाद। निकुल जी, आपने बोला ये न्याय यात्रा थी ना, हाउ मेनी सिख राइट विक्टिम्स वर देयर इन दिस यात्रा? यू कॉल जगदीश टाइटलर हु हैज बीन चार्ज्ड बाय कोर्ट, नाउ टेल मी द नंबर ऑफ हाउ मेनी सिख पीड़ित वर देयर इन दैट यात्रा। Shehzad, what you want to convey that Sikhs were not a part of the yatra? सिख पीड़ित, आपने न्याय यात्रा बोली, न्याय तो उनको मिलना चाहिए पीड़ित को, नॉट टू द परपिट्रेटर। परपिट्रेटर को न्याय दिलवा दिया आपने, पर आप जो पीड़ित है उनको न्याय देना भूल गए। अरे आप 3 नाम ले लो ना कि ये सिख पीड़ित दंगे, सिख दंगों के पीड़ित को बुलाया था, राहुल जी उनके साथ चले, तो मतलब कि पिताजी की थॉट प्रोसेस को बेटा जी आगे कर रहे हैं। You want to bifurcate the Janata parties, that to put the people in the name of religion, put the people in the name of caste. Nikul ji, can I ask you a question? Nikul ji, can I ask you a question? No, Nikul ji, one second. Nikul ji, you are a decent man. Nikul ji, चीखा चिल्ली की आवश्यकता नहीं है. Pranesh is giving us time. Nikul ji, one second. I have a question. I have a very small question. Nikul ji, एक छोटा सवाल है, please सुन लीजिए. Nikul ji, do you think Jagdish Tytler, who's now been charged by a court, owes account to the Sikh riot victims? And if he does, why Rahul Gandhi's heart beats for him but not for the victims? With your thought process and your intellectual right now, Shehzad. Listen, Dr. Nikul Patel, there is no thought in this. There is no thought. The only thought is divisive thought. The thought to scare people and communities. Otherwise, I don't see anything else. But let's move on. We'll have to thank some of you for joining us on debate number 1.